So we'll start with the muscular tissue. Now the muscle is made up of muscle fibers. Muscle fibers are elongated in nature. Now the muscle fiber is covered with a covering which we call as sarcolemma. ठीक है? The covering of muscle fiber is sarcolemma, and the cytoplasm, it is called as sarcoplasm. Now, in this sarcoplasm, whatever cell organelles are present, they are present in this sarcoplasm. जो भी नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ER वगैरह वगैरह जो भी है, those organelles of muscle fiber will be present in the sarcoplasm. Now, basically, muscle fiber may have one or many nuclei depending upon the type of the muscle fiber, or sorry, muscle, which type of muscle it is, that will decide uh, the muscle fiber will contain single or many nuclei. Now, this muscle fiber, it contains many microscopic fiber-like structures which are called as myofibrils. Myo यानी muscle, fibril यानी tubule-like structures. So, microscopic tubule-like structures which are present in the muscle, single muscle fiber, these are called as myofibrils. So many myofibrils combined together will form a muscle fiber, and many muscle fibers, when they come together, they form a single muscle. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Now this myofibril, it is made up of two proteins, actin and myosin, which are responsible for the contraction of the muscle fiber. So these are the proteins which are responsible for the shortening of length of a muscle fiber. According to the stimulus it receives, the muscle fibers contract and decrease in its length on a stimulation. Hence, the basic character of muscle tissue is contractility. Now, muscle fiber or muscles, they have their own blood supply and they have their own nerve supply also. So, this is what we have learned about the muscle tissue. Again, muscle fibers have, or muscle cells have, large number of mitochondria because energy generation is done in the, or the energy generation का जो process होता है, it happens inside the mitochondria, and muscles need a lot of energy to function, and that is why number of mitochondria is large in muscle cells as compared to other tissues whatever we have seen till now. समझ में आ गया? This is the general structure of muscle, or a Yes, muscle ma'am. tissue, or a muscle fiber we can say. Now the types of muscular tissue, there are actually three types: skeletal muscles, non-skeletal muscles, and cardiac muscles. Okay, we have learned about this in, I think, 9th or 10th standard. A little bit of knowledge is there. Skeletal muscles, as the name suggests, these muscles are associated with the bones. The muscles which are attached to the endoskeleton, these are called as skeletal muscles. नाम से ही समझ में आ जाता है, skeleton को जो भी attach होंगे, those are the skeletal muscles. Yes. So these are the muscles which are found attached to the bones. बोन्स को ये किस तरीके से अटैच होते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. किस तरीके से होते हैं? बेसिकली पूरा का पूरा बोन, सॉरी, पूरा का पूरा मसल बोन को अटैच नहीं होता है. ओनली जो एंड पार्ट होता है मसल का, वही अटैच होता है. एंड पार्ट में क्या होता है? मसल के टेंडन्स होते हैं, राइट? अगर ये बोन है, एंड हमेशा जो मसल्स होते हैं
वो दो बोन्स को अटैच होते हैं, यानी बोन का एक ओरिजिन होता है एंड एक एंड, सॉरी मसल का एक एंड होता है एंड एक ओरिजिन होता है। आई एम जस्ट टू क्लियर यू कैसे होता है ये बता रही हूँ आपको। मसल जो होता है कभी भी सिंगल बोन को अटैच नहीं होता है, दो बोन्स को अटैच होता है, बिकॉज स्केलेटल मसल्स का मेन काम क्या होता है, जो भी मूवमेंट है, बॉडी की मूवमेंट्स है, उसको प्रॉपरली करना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ skeletal muscles, and that is why they are always attached to the two different bones। adjacent जो bone होंगे उस पर उसका attachment होता है। now जो भी muscle होगा वो पूरी की पूरी तरीके से अटैच नहीं होता है, ओनली उसका जो एंड पार्ट होगा ये वाला, दिस विल बी अटैच टू द बोन। एंड अगेन जो एंड पार्ट होता है यानी ये जो पार्ट होता है, इट इज मेड अप ऑफ टेंडन, जो हमने इससे पहले सीखा है, याद है ना। Tendons are made up of which kind of fibers? White fibers, which give a tensile strength. So, with the help of these tendons, the muscles are attached to the bones. ये ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन आगे 12th में वगैरह ये नॉलेज जरूरी होता है MCQs के लिए वगैरह। So, this is how muscles are attached to the skeleton. The skeletal muscles consist of large number of fasciculi which are wrapped by connective tissue sheath called as epimysium or fascia। Now ये थोड़ा सा रीड करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Each individual fasciculus is covered by perimysium. Each fasciculus in turn consists of many muscle fibers called as myofibers। इसका मीनिंग ध्यान में रखना। सबसे पहले हम छोटे से ऊपर ऊपर जाते हैं। हमने क्या देखा कि मसल फाइबर जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी मायोफिब्रिल्स, राइट। सो यहाँ पर जो होगा वो पहला पार्ट आएगा, दीज आर द मायोफिब्रिल्स और मायोफाइबर्स। मायोफाइबर्स मायोफिब्रिल्स आर सेम, ठीक है। सो दीज मायोफिब्रिल्स will form a muscle fiber। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am। So इस तरीके से if this is one muscle fiber, यहाँ पर मैं अगर दूसरा एक मसल फाइबर निकाल रही हूँ जो कि कलर डिफरेंट ले रही हूँ क्योंकि समझ में आना चाहिए, दिस विल बी द सेकेंड मसल फाइबर, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे मसल फाइबर्स एक साथ आते हैं, देन दे आर कवर्ड विथ पेरीमाइसियम, एक कवरिंग होता है, ठीक है। सो दीज विल बी कवर्ड विथ अ पेरीमाइसियम। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। सो इसको हम बोलेंगे अ सिंगल fasciculus। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ fasciculus। एंड ऐसे बहुत सारे fasciculus और एक साथ जब आते हैं तब हम उसको बोलते हैं fascia, and this fascia is covered by epimysium, और same that is fascia epimysium are same। समझ में आ गया? ये नहीं आया फिर से एक बार बोलो। एक बार बोल। See, muscle tissue or a single muscle is made up of many muscle fibers, right? Now these muscle fibers are made up of many myofibers। So ये जो भी डिफरेंट कलर मैंने यहाँ पर लिया है, ब्लैक, येलो, दीज आर द मायोफाइबर्स और मायोफिब्रिल्स विच आर गोइंग टू फॉर्म अ सिंगल मसल फाइबर। सो ये ब्लैक वाला एक सिंगल मसल फाइबर होगा, येलो वाला जो है वो एक सिंगल मसल फाइबर होगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे मसल फाइबर्स एक साथ आते हैं, देन दे आर रैप्ड इन अ कवरिंग, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज दिस पेरीमाइसियम। कवरिंग जो है उसको हम पेरीमाइसियम बोलेंगे, लेकिन कवरिंग के अंदर वाला जो पार्ट है विच कंसिस्ट ऑफ मेनी मायोफाइबर्स, दैट इज कॉल्ड एज, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अ सिंगल फैसिक्यूलस, ठीक है। एंड ऐसे बहुत सारे फैसिक्यूलस एक साथ आके फिर जो मसल जिसको हम बोलते हैं वो मसल बनता है, एंड इट इज कवर्ड विथ, जो उसका आउटर कवरिंग होगा उसको हम बोलेंगे फेशिया। फेशिया को, और ये जो यहाँ पर है ना
सार्कोलेमा, उसको कंफ्यूज नहीं करना है. सार्कोलेमा इज द कवरिंग, और जो क्या बोलते हैं हम उसको, मसल फाइबर, जो सिंगल मसल फाइबर है उसका कवरिंग जो है उसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं. वेराज फेशिया क्या है, पूरा जो मसल है, पूरा मसल का जो भी कवरिंग होगा उसको हम बोलेंगे फेशिया. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस मैम. फिर से एक बार बोलती हूँ. अगर मैं यहाँ पर एक मसल निकाल रही हूँ, यहाँ पर पूरा बोट शेप होता है मसल हमेशा, नॉर्मली स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो, तो ये जो भी मसल का कवरिंग होगा, मसल का, मैं मसल का बोल रही हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एज फेशिया. बट ये जो मसल है ये बहुत सारे मायोफाइबर्स से बनता है. यहाँ पर अगर मैं मायोफाइबर निकाल रही हूँ, मायोफाइबर यानी क्या होगा, वो सिंगल मसल फाइबर, यानी सिंगल सेल मसल टिश्यू का सिंगल सेल, उसका जो आउटर कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा. क्लियर है दोनों का डिफरेंस, फेशिया एंड सार्कोलेमा का? यस मैम. ओके, ठीक. तो ये पार्ट समझ में आ गया, फैसिकुला या ये जो भी क्या है, एपिमाइसियम. क्लियर है ये सारा? ओके. Now each muscle fiber is syncytial fiber that contains several nuclei. जैसे हमने पहले देखा कि मसल टाइप देख के उसमें कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा वो डिपेंड होगा. सो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उनमें मोर देन वन न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट. ठीक है. नाउ सिंसिटियल फाइबर का मीनिंग पता है, या सिंसिटियल का मीनिंग पता है क्या? नो मैम. हमने पहला जो भी एक लेसन था उसमें कोनोसाइटिक हाइफा देखा था, कोनोसाइटिक. ठीक है. उसी का अपोजिट वर्ड है सिंसिटियल. सिंसिटियल अभी हम जो मसल फाइबर सीख रहे हैं या मसल सीख रहे हैं उसमें क्या है, ये इफ इट इज अ सिंगल मसल फाइबर, यहाँ पर क्या होगा, सार्कोप्लाज्म होगा, राइट. सार्कोप्लाज्म में मतलब सिंगल मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई है. ऐसा जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं सिंसिटियल. नाउ मसल फाइबर है, यानी मसल का जो सिंगल सेल है वो फाइबर होता है. फाइबर यानी इलोंगेटेड होता है, फाइबर लाइक होता है. दैट इज वाई इस सेल को हम सिंसिटियल फाइबर बोल रहे हैं. अदरवाइज हम उसको सिंसिटियल सेल भी बोल सकते हैं. एंड कोनोसाइटिक का मीनिंग क्या था, हमने जब फंगस में देखा था वो, तो उसमें क्या था, ये सिंगल सेल होती है, इट कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई इनसाइड इट्स साइटोप्लाज्म. इसी तरीके से है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बीच बीच में कंपार्टमेंट होते हैं. मतलब सेल अलग अलग नहीं होती है, लेकिन सेल में कंपार्टमेंट होते हैं. दिस इज होल, पूरा का पूरा ये सिंगल सेल है, बट यहाँ पर भी बहुत सारे न्यूक्लियाई है, बट दिस न्यूक्लियाई आर सेपरेटेड बाय द कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स. इसको हम बोलते हैं कोनोसाइटिक हाइफी, COE करके. दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? यस मैम. ये सिंगल साइटोप्लाज्म, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म सिर्फ यहाँ पर डिवाइड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कंपार्टमेंट्स. ठीक है. दिस इज नॉट सेल वॉल वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ कंपार्टमेंट, एक बैरियर होता है बीच में बस, जो इस तरीके के सेल में नहीं होता है. सो ऐसी जो सेल है इसको हम बोलते हैं सिंसिटियल सेल, इसको हम बोलते हैं कोनोसाइटिक सेल. ठीक है, क्लियर है डिफरेंस? यस मैम. सो मसल सेल जो है इट इज सिंसिटियल सेल विच कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई. अभी यहाँ पर ये जो मीनिंग होता है सिंसिटियल या कोनोसाइटिक का, ये हमको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में उन्होंने क्लियर कट बताया है कि सिंसिटियल फाइबर विच कंटेन्स सेवरल न्यूक्लियाई. आगे जाके आपको सेवरल न्यूक्लियाई ये नहीं, सिर्फ सिंसिटियल. सिंसिटियल जब नाम आएगा तब पता होना चाहिए कि इट हैज मेनी न्यूक्लियाई इनसाइड इट. A single cell contains many nuclei. So the cell membrane, it is वही जो पहले हमने नॉर्मल या कॉमन स्ट्रक्चर में देखा था वही यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. The cell membrane is called as sarcolemma.
which delimits the cytoplasm, which is called as sarcoplasm. ठीक है ना, पहले का ही जो भी हमने पहले स्टडी किया है वही रिपीट किया है यहाँ पर. दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर. Even if it is a skeletal muscle, it is called as sarcoplasm, and this sarcoplasm is limited with the help of a cell membrane, which in case of muscle fiber we call it as a sarcolemma. Sarcoplasm contains large number of parallelly arranged myofibrils, hence nuclei get shifted to the periphery. Now हमने अभी देखा कि जो भी मसल है इट इज मेड अप ऑफ मेनी मसल फाइबर्स. इस तरीके से मसल फाइबर्स से बनते हैं. नाउ मसल फाइबर्स हमेशा पैरेलली अरेंज्ड होते हैं. इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन पर्सन, जब नॉन वेज फूड खाया होगा तो पता होगा कि जो भी मसल फाइबर्स होते हैं वो हमेशा थ्रेड लाइक दिखते हैं, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं. देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा इतना पर्टिकुलरली तो अभी देख लेना. देखा है देखा है. So that is what they are explained here कि they are always parallelly arranged, and as they are parallelly arranged जो भी न्यूक्लियाई होते हैं वो सारे के सारे पेरीफेरी में इस तरह बॉर्डर पर शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है. Each myofibril is made up of repeated functional units called as sarcomere. Now ये थोड़ा सा पार्ट जो है ना इसको ध्यान से हमको देखना है. अगर सॉरी यहाँ पर मैं एक सिंगल मसल फाइबर है ना वो ड्रॉ कर रही हूँ. इसके जो भी पार्ट्स है वो हमको सीखने हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं, या ये जो एक्टिन एंड मायोसिन है वो कैसे अरेंज होता है, कहाँ पर अरेंज होता है, ये हमको यहाँ पर सीखना है. इफ दिस इज अ सिंगल मसल फाइबर, each myofibril is made up of repeated functional units called as sarcomere. Now इस तरीके से डिविजन्स होते हैं. ये दिखाई नहीं देता है हमको कुछ भी बेसिकली, बट ये जो भी डिवीजन होगा एक एक उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर्स. These sarcomeres are actually responsible for the contraction in a muscle. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. एक एक सेंटेंस का मीनिंग आपको बता रही हूँ. यहाँ तक क्लियर है व्हाट इज सार्कोमियर? समझ में आ रहा है? यस मैम. Each sarcomere has a dark band called as anisotropic or A band in the center. 1 minute है, यहाँ पर आपको शायद डायग्राम है इसका शो. डायग्राम यहाँ पर सी, यहाँ पर उन्होंने एक मसल फाइबर लिया है. नाउ वी नो मसल फाइबर, सिंगल मसल फाइबर जो होता है इट इज मेड अप ऑफ मेनी मायोफिब्रिल्स. ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट आपको दिखाई देगा. नाउ ये जो पार्टीज छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं उसमें आपको यहाँ पर एक सार्कोमियर क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन दिया है. दिस इज द सार्कोमियर, एक यूनिट है ये. इसी तरीके से आगे भी होगा, इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा. समझ में आ रहा है? यस मैम. दिस इज sarcomere basically. Now the sarcomere has a dark band which is called as A band. यही पार्ट जो है ये अंडर माइक्रोस्कोप हमको कैसे दिखता है ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. नाउ यहाँ पर जो डार्क बैंड होगा ऑब्वियसली वो कौन सा होगा? जहां पर ये दोनों फाइबर्स एक साथ आते हैं. समझ में आ रहा है? यस मैम. ब्राउन एंड ब्लू ये दो कलर में आपको फाइबर्स यहाँ पर मेंशन किए हैं. जहां पर दोनों एक साथ आते हैं वो जो पार्ट होता है वो डार्क कलर का दिखता है. डार्क कलर हमको कब दिखता है? जब लाइट उससे पास नहीं हो पाती. समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाई इट इज called as anisotropic band.
सी हीट, ये जो डार्क बैंड होता है उससे लाइट पास आउट नहीं होती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनआइसोट्रॉपिक. एंड एज अनआइसोट्रॉपिक का स्पेलिंग ए से स्टार्ट होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ ए बैंड. समझ में आ रहा है? Yes. So now in the center of A band there is a light band which is called as H zone or Henson's zone. See, अभी हमने क्या देखा कि ये जो है ये डार्क वाला पार्ट है, यानी ये ए बैंड है. ठीक है, ये पूरा का पूरा ए बैंड है. ये जो भी होगा ना, दिस इज ऑल द ए बैंड, जहां पर दोनों फाइबर्स हमको एक साथ दिखते हैं. नाउ इस ए बैंड के सेंटर में एक लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड एज हेंसन्स लाइन और एच जोन. समझ में आ रहा है? Yes. नाउ इन द सेंटर ऑफ एच जोन देयर इज एम लाइन. ये जो एच जोन है, अभी ये हो गया एच जोन. इस एच जोन के सेंटर में एक लाइन होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज एम लाइन. थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन समझ में तो आ रहा है कैसे है? समझ में आ रहा है? Yes. अगेन फिर से एक बार बोलती हूँ, दिस इज फुल सार्कोमियर. सार्कोमियर में डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग होता है ना, ब्लैक व्हाइट अल्टरनेट होता है एक दूसरे के साथ. सिमिलरली सार्कोमियर में भी डार्क, उसके बाद छोटा लाइट वाला पार्ट, अगेन डार्क लाइट, इस तरीके से दे अल्टरनेट विथ ईच अदर. जो डार्क पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज ए बैंड और अनआइसोट्रॉपिक बैंड, बिकॉज light rays cannot pass through that portion of the muscle fiber. Okay, now at the center of this A band there is a light band which is called as H zone. ठीक है, and this H zone has a line at the center of it which is called as M line. यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. A bands are made up of myosin as well as actin. So हमने यही देखा यहाँ पर कि जो A band है दोनों फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मायोसिन एंड एक्टिन, जो कि एक ब्राउन कलर में दिखाई देगा आपको, एंड एक यहाँ पर उन्होंने ब्लू कलर में डिनोट किया है. On either side of A band are the light bands called as isotropic or I bands that contain only actin. So isotropic का मीनिंग क्या होगा? Through this part light rays can pass through. I से start होता है, that is why that band is called as I band, and this I band only contains actin filaments, या एक्टिन प्रोटीन ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है. अभी ये जो डायग्राम है उसमें भी हमको दिखाई देगा कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर सिर्फ ये ब्लू लाइंस दिखाई दे रही है, दोज आर द एक्टिन फाइबर्स. ब्राउन जो है दोज आर द मायोसिन फाइबर्स. जो ए बैंड है उसमें एक्टिन मायोसिन दोनों भी प्रेजेंट है, एंड जो आई बैंड है उसमें ओनली एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है. समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है. Myosin are thick and dark colored while actin filaments are thin and light colored. जो अभी हमने डायग्राम में भी देखा, जो मायोसिन होता है वो थिक होता है एज कंपेयर टू एक्टिन फिलामेंट. Adjacent light bands are separated by a Z line, और इसको जेनसेंस लाइन भी बोलते हैं. इसका जो ये अलग है, लेकिन इसको हम जेनसेंस लाइन भी बोल सकते हैं. Z line. Dark and light bands are on the neighboring myofibrils correspond with each other, hence muscle gates striated appearance. See, अभी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, Yes.
ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे सिंगल सार्कोमियर। ठीक है ना, इसके आगे भी एक्सटेंशन होगा इसका, राइट। यहाँ पर लाइट yes, बैंड होगा, यहाँ पर डार्क बैंड होगा, अगेन यहाँ पर लाइट बैंड होगा। ठीक है, नाउ ये दोनों जो सार्कोमियर्स है, यहाँ पर ये जिगजैग लाइन दिख रही है। yes, So the adjacent sarcomeres are separated by this zigzag line which is called as Z line। मतलब ये जो दो लाइट बैंड्स होते हैं सार्कोमियर्स के, एडजेसेंट सार्कोमियर्स के, these are separated with this Z line। समझ में आ रहा है, yes, क्लियर है, या फिर से एक्सप्लेन करना है? करना है या नहीं है, आगे जाना है? एक बार रिवाइज। एक बार करो। ओके, सी बेसिकली what is the main function of a muscle or a muscle tissue? That is the contractibility, that is the main character or function। now ये जो contractions होते हैं muscle fiber में and ultimately in a muscle, those are caused because of this sarcomere। जैसे हम बोलते हैं ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल जो यूनिट होता है दैट इज अ सेल। Cell is yes, a fundamental structural and functional unit of a living organism। Similarly, ये जो sarcomere है, it is basically responsible for the movement of the muscle fiber, right। now yes, what is the structure of basically sarcomere का structure क्या होता है? now हमने ये देखा है कि जो भी muscle fiber है it is made up of two proteins, actin and myosin, राइट। सो ऑब्वियसली yes, सार्कोमियर में भी ये एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रोटीन्स हमको देखने को मिलेंगे ना। सार्कोमियर में होता क्या है, ये जो सार्कोमियर है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है इट इज डार्क कलर, डार्क कलर का होता है। क्यों होता है डार्क कलर का? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बोथ द एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर्स, and because of this what happens, light cannot pass through this part of the muscle fiber, and that is why we call this part as A band or anisotropic band। ठीक है, but still at the center of this A band only यहाँ पर कौन से फाइबर्स दिख रहे हैं हमको? मायोसिन के दिख रहे हैं, एक्टिन नहीं है यहाँ पर, राइट ना। तो ये yes, जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं H जोन और हेंसेंस जोन। एंड हेंसेंस जोन के सेंटर में एक लाइन दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं एम लाइन। यहां तक क्लियर है स्ट्रक्चर ए बैंड का कैसा है? नाउ ए बैंड विल अल्टरनेट विथ अ लाइट बैंड विच इज कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक बैंड। As it is isotropic, we call it as I band। Now, I band is made up of only actin filaments। Actin filaments are thin as compared to myosin filaments, and that is why light can pass through this part, and hence we call it as isotropic or I band। यहाँ तक क्लियर है दोनों बैंड्स? दिस yes, इज ma'am, A band, दिस इज I band। यहाँ पर H जोन होगा एंड M लाइन होगी। नाउ ये हो गया, यहाँ पर हो गया एंड हो गया सार्कोमियर का, एंड यहाँ पर भी इस पार्ट में लाइट बैंड के बाद एंड हो जाएगा, एंड जो एडजेसेंट सार्कोमियर है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो yes, दिस आई बैंड एंड एडजेसेंट वाला जो भी सार्कोमियर होगा उसका आई बैंड जो होगा, they are separated by a zigzag line। this line is called as Z line। ठीक है, हो गया yes, क्लियर? yes, इसी ma'am, तरीके से यहाँ पर भी सेम होगा। यहाँ पर जो भी एडजेसेंट सार्कोमियर होगा उसका लाइट या आई बैंड जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एन आई बैंड, दिस इज ऑल्सो एन आई बैंड, यहाँ पर भी आई बैंड है। क्लियर है? सो two yes, I bands of adjacent sarcomeres are separated with the Z line। क्लियर है? yes,
जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो यहाँ पर डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना, ये वाला यहाँ का, ये कम हो जाता है, पूरा गैप, वो जो जेड लाइन है वो बंद हो जाती है, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल हैपेंस। ठीक है, यानी ये जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, दे स्लाइड ओवर दिस मायोसिन फिलामेंट एंड दे कम क्लोज टू ईच अदर, इन दिस वे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल हैपेंस। सो सार्कोमियर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? Yes, ma'am. So the dark and light bands on the neighboring myofibrils correspond with each other and hence the muscle gets striated appearance. So ये जो dark band, light band इस तरीके का जो appearance होता है, because of that उसको striations आते हैं. Striations यानी जैसे zebra crossing होता है, एक particular band जो होता है वो that alternates with each other, that is called as striations. तो हमको striations उसको, because of these two bands we can get the striations in स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में हमको स्ट्राइएशंस दिखाई देती है बिकॉज ऑफ ये जो सार्कोमियर के जो दो बैंड्स है उसके वजह से। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का पॉइंट है। क्योंकि जो दूसरा टाइप है स्मूथ मसल्स या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स हम जिसको बोलते हैं, उसमें हमको स्ट्राइएशंस दिखाई नहीं देती है। नाउ स्केलेटल मसल्स शो क्विक एंड स्ट्रॉन्ग वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस। सी हमें जब आर्म्स मूव करने, लेग्स मूव करने या आईलिड्स मूव करनी है, व्हाटएवर जो भी बॉडी की यानी जो भी स्केलेटन की मूवमेंट होती है, वो जो भी मूवमेंट होती है वो वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी का मीनिंग पता है? वॉलंटियर्स का मीनिंग पता है ना? वॉलंटियर्स यानी विथ आवर ओन विल। इफ आई वांट टू मूव माय हैंड देन एंड देन ओनली आई विल बी मूविंग इट, राइट? दैट इज वॉलंटरी एक्शंस। मुझे अगर करना है तभी मैं करूंगी, दैट इज द वॉलंटरी, दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर विल। सो स्केलेटल मसल्स वर्क according to our will, that is the skeletal muscles are voluntary in nature. जो भी voluntary actions होते हैं वो हमेशा quick होते हैं, जल्दी जल्दी होता है, यानी ज्यादा टाइम नहीं लगता है उस मूवमेंट में, राइट? दे ब्रिंग अबाउट वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। अभी ये जो भी है ना स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट या जो भी कैसे होता है, क्या होता है, ये दूसरे लोकोमोशन का जो लेसन है उसमें हमको डिटेल में सीखना है कि हाउ द एक्टिन मायोसिन कैसे मूव करते हैं, व्हाई दे मूव वगैरह, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मूवमेंट। ये सब हमको लोकोमोशन के यानी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी का जो फंक्शन है मसल फाइबर का, उसका स्टडी हमको इस लेसन में स्टडी करना है। बेसिकली यहाँ पर इतना ही ध्यान में रखना है, स्केलेटल मसल्स शो स्ट्राइएशंस। दूसरा डिफरेंशिएशन का पॉइंट है, these are voluntary muscles and they bring about quick and strong movements of the body. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। Now on the basis of amount of red pigment जो हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, राइट ना? हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलरेशन आता है ब्लड को। सो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ दिस रेड पिगमेंट द स्केलेटल मसल्स आर ऑफ टू टाइप। दो मेन टाइप्स है, रेड एंड व्हाइट मसल्स। ठीक है, रेड मसल्स ऑब्वियसली उसमें जो रेड पिगमेंट्स है उसका अमाउंट ज्यादा होगा, व्हाइट मसल में एज कंपेयर टू दिस कम होगा। क्लियर है यहाँ तक? रेड मसल्स कंटेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन while white muscles contain very low amount of this pigment. Now see जैसे हीम पिगमेंट है उसी तरीके से मसल में मायोग्लोबिन होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ हीम एंड दिस मायोग्लोबिन, क्योंकि हमने क्या देखा कि मसल्स को एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट भी मसल सेल्स में ज्यादा होता है, राइट? सो ये जो एनर्जी जनरेशन है वो ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर दूसरा जो सोर्स है, जैसे हीम होता है उसी तरीके से मायोग्लोबिन पिगमेंट्स ओनली, मायो यानी मसल, सो मायोग्लोबिन विल बी ओनली प्रेजेंट इन द मसल्स। ठीक है, सो ये जो दो टाइप है ना, रेड एंड व्हाइट, तो उसमें जो रेड मसल्स है उसमें हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट एंड दैट इज व्हाई दे लुक रेड इन कलर, whereas in white muscles द मायोग्लोबिन का जो अमाउंट होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, दैट इज व्हाई इट लुक्स व्हाइटिश इन कलर। Myoglobin is an iron containing red colored pigment only in muscles. जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन यानी हीम,
ग्लोबिन, नाम देखना, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. So myoglobin is a specific pigment which contains iron. Iron यानी again यहाँ पर हीम आएगा, which will be present in only myo यानी muscle cells. So myoglobin is only present in the muscles. It consists of one heme and one polypeptide chain. तो ये जो मायोग्लोबिन होता है, ग्लोबिन यानी चेन होती है प्रोटीन्स की. सो मायोग्लोबिन में क्या होगा, एक हीम पिगमेंट होगा एंड एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी. इट कैन कैरी वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. एज हीम जो होता है ना, हीम यानी ये जो पिगमेंट है, इट अट्रैक्ट्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का ये अटैचमेंट साइट होता है. सो दैट इज वाई इट कैन कैरी वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन हीम प्रेजेंट है. हर एक मायोग्लोबिन में ग्लोबिन के अंदर एक हीम पिगमेंट होता है. दैट इज वाई इट कैन कैरी ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. And because of the presence of this myoglobin, the muscles can obtain their oxygen from the two sources, that is myoglobin and hemoglobin. यानी मसल का जो ब्लड सप्लाई होता है उससे भी उनको ऑक्सीजन मिलेगा, एज वेल एज मायोग्लोबिन से भी उसको ऑक्सीजन मिलेगा. इन दिस वे जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो डबल हो जाता है. क्यों हो जाता है? बिकॉज they need large amount of energy for the contractions of the different muscles inside the body. क्लियर है यहाँ तक? Yes. 1 minute only. So second type of muscle fiber और muscle fiber नहीं, second type जो है muscles का, that is non-striated. See, जो पहला टाइप था दैट वाज स्ट्राइटेड. स्ट्राइटेड क्यों बोला हमने? बिकॉज ऑफ द जो सार्कोमियर है, सार्कोमियर में जो दो बैंड्स दिखाई देते हैं, ए बैंड एंड आई बैंड, बिकॉज ऑफ दोज बैंड्स इट लुक्स स्ट्राइटेड. नाउ जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज नॉन स्ट्राइटेड मसल्स. नॉन स्ट्राइटेड मसल्स में क्या होगा, वो जो स्ट्राइएशंस दिखाई देते हैं वो नहीं दिखाई देंगे. दैट इज व्हाई हम उसको नॉन स्ट्राइटेड बोलते हैं. अगेन स्मूथ मसल्स. स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ना, स्केलेटल मसल्स में हमने क्या डिफरेंट मतलब एक डिफरेंशिएशन का पॉइंट देखा कि दीज आर वॉलंटरी इन नेचर, स्केलेटल मसल्स, एंड जो भी उनकी एक्शन होती है वो बहुत ज्यादा क्विक एंड फास्ट होती है, राइट? लेकिन स्मूथ मसल्स जो होते हैं ना, स्मूथ मसल्स में जो एक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है, एंड दीज मसल्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द स्केलेटन. ठीक है? जो भी इंटेस्टाइन है, ईसोफेगस वगैरह वगैरह, जो भी पार्ट है इंटेस्टाइन का, वो पार्ट, या जो हमारी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स, ये जो भी है, उनमें जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं दोज आर स्मूथ मसल्स. नाउ इनकी एक्शन स्लो होती है एंड दीज आर इनवॉलंटरी इन नेचर, मतलब हमारे विल से नहीं होता ये जो भी फंक्शंस है smooth muscle के, they are not according to our will. That is why these are involuntary muscles. So smooth muscles are involuntary in nature, striations are absent, and उनके actions जो होते हैं those are very delayed and slow होते हैं. तो ये सारा जनरल डिस्क्रिप्शन हो गया. जो नॉर्मल था ना कि जो भी मसल सेल है या मसल फाइबर है, इट हैज अ कवरिंग ऑफ सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होगा वगैरह, वो सारे कॉमन पॉइंट्स इसमें भी है. दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शीट्स और लेयर्स. तो ये जो भी स्मूथ मसल्स होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शीट्स. लाइक जैसे हमारा बुक होता है ना, एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, दूसरे पेज के तीसरा, इस तरीके से लेयर्स होते हैं पेजेस के, देन एक बुक बनता है, राइट? सिमिलरली ये जो भी स्मूथ मसल्स है उन पर भी ऐसे लेयर्स मतलब दीज आर मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स. क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है? हेलो? Yes. सो ये जो भी मसल्स है दे शो लेयर्स. Each muscle cell is spindle shaped or fusiform. Now जो स्केलेटल मसल था उसमें हमने क्या देखा, मसल फाइबर जो है वो इलोंगेटेड है ना, सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड दिखाई दे रहा है.
स्मूथ मसल्स में जो है वो स्पिंडल शेप का, यानी इस तरीके से बोट शेप जैसे बोलते हैं ना कि सेंटर वाला जो पार्ट होगा वो ब्रॉडर होता है, एंड जैसे जैसे हम एंड को जाते हैं तो दैट पार्ट बिकम्स टेपरिंग. सच अ फॉर्म इज कॉल्ड एज फ्यूजिफॉर्म. क्लियर हो रहा है? ये स्पिंडल लाइक समझ में yes, आ रहा sir. है ना? So Yes, these muscles are spindle shaped. The fibers are unbranched, having single nucleus at the center. Now ये जो fibers होते हैं ये single single fibers होते हैं, fusiform है, and nucleus जो है single nucleus होगा, and which will be placed at the center. हमने skeletal muscle में क्या देखा था? Many nuclei are present, and जो nuclei होते हैं वो पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाते हैं. दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? वेराज इन नॉन स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स जो न्यूक्लियस है सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होगा, एंड दैट विल बी प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द मसल फाइबर. क्लियर है यहाँ तक? yes, sir. नाउ स्मूथ मसल्स कंटेन लेस मायोसिन एंड मोर एक्टिन एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स. नाउ हमने मायोसिन जो होता है वो थिक होता है एज कंपेयर टू एक्टिन, ये देखा है, राइट? बराबर है ना? Yes, सी मायोसिन फाइबर जो है वो थिकर है ब्राउन कलर में, एंड एक्टिन फाइबर जो है वो थिन होता है एज कंपेयर टू दिस. नाउ जो स्मूथ मसल्स है उसमें मायोसिन का अमाउंट कम है, वेराज एक्टिन जो है वो ज्यादा अमाउंट में होता है. डिफरेंस समझ में आ रहा है? yes, सो मायोफिब्रिल्स आर मेड अप ऑफ, सॉरी, सेम एक्टिन मायोसिन दोनों भी इसमें भी प्रेजेंट है, बट द अमाउंट ऑफ एक्टिन इज मोर एज कंपेयर टू मायोसिन. नाउ स्ट्राइएशंस आर एब्सेंट बिकॉज ऑफ इनका जो कॉम्बिनेशन है ना एक्टिन मायोसिन, उसके वजह से जो ए बैंड आई बैंड जो हमको स्केलेटल मसल में दिखाई देते हैं वो बैंड्स हमको स्मूथ मसल्स में नहीं दिखाई देते. दीज आर एब्सेंट. दैट इज वाई हम उसको नॉन स्केलेटल मसल्स बोलते हैं. समझ में आ रहा है? yes, sir. Now these muscles undergo slow, sustained, involuntary contractions. So smooth muscle में जो contraction होते हैं वो बहुत slow होते हैं. These are involuntary and sustained, यानी बहुत धीरे धीरे चलता है काम में. They are innervated by the autonomous nervous system. Now nervous system जो हमने 10th में सीखी है, autonomous, और कौन से टाइप्स है नर्वस सिस्टम के? ऑटोनॉमस, पेरिफेरल, है ना? पेरिफेरल यानी जो भी हमारे आर्म्स है, अपर आर्म, लोअर आर्म, इनको जो सप्लाई करते हैं नर्व्स, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्व्स. Yes, पेरिफेरी, बॉडी की पेरिफेरी क्या है? हमारे लिम्स है, तो लिम्ब को सप्लाई करने वाले जो भी नर्व्स है दोज आर पेरिफेरल नर्व्स. दैट विल फॉर्म अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. Autonomous nervous system यानी the organs which are involuntary in nature. For example, heart, lungs, liver, intestine, brain वगैरह, ये जो भी है they don't work according to our will, है ना? So yes, ऐसे जो भी organs है बॉडी में, उन सारे organs को जो सप्लाई करती है नर्व, या जो उनको सप्लाई करने वाले जो नर्व्स होते हैं, दे फॉर्म द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. ठीक है ना? सो वही मैंने बोला कि जो भी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स है दीज आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. फॉर yes, एग्जांपल आर्टरीज, वेन्स वगैरह वगैरह वगैरह. जो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा वहीं पर मसल होगी. ठीक है? अभी मैंने जो भी लंग्स या लीवर वगैरह बोला, दीज आर द विसरल ऑर्गन्स, उनका टिश्यू अलग होता है. यहाँ पर हम जो मसल्स सीख रहे हैं स्मूथ मसल्स, दोज विल बी जो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वहीं पर मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है? yes, स्मूथ मसल्स. सो जो भी ऑटोनॉमस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है वहां पर हमको स्मूथ मसल्स दिखाई देंगे. फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन्स, आर्टरीज, वेन्स. क्लियर है यहाँ तक? yes, ma'am. These are found in the walls of visceral organs and blood vessels. So visceral organs, visceral organ का मीनिंग पता है? Visceral, जो ऑर्गन्स जिनमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होते. फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट जो है, हाँ, राइट?
लंग्स वगैरह है, सॉफ्ट ऑर्गन्स है ना ये सारे के सारे। ऐसे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में उनको हम बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये जो विसरल ऑर्गन्स है उनकी जो आउटर वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड ब्लड वेसल्स। जो मैंने आर्टरीज वेंस ये जो भी बोले, ये जो भी इनकी जो वॉल्स है दीज आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Hence they are also called as visceral muscles. As अभी ये जो ऑर्गन्स है इनको हम विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स है सारे के सारे। सो ऐसे जो ऑर्गन्स है विसरल ऑर्गन्स है उनमें जो मसल्स प्रेजेंट होती है उसी को हम विसरल मसल्स भी बोलते हैं। सो स्मूथ मसल्स के नाम क्या क्या हुए? हम उसको स्मूथ मसल भी बोलते हैं, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, एज वेल एज विसरल मसल्स भी बोलते हैं। सेम है सारे के सारे। दे मे बी अरेंज्ड लेंथ वाइज और अराउंड द सर्कमफेरेंस। नाउ ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती है, यानी इस तरीके से भी अरेंज हो सकते हैं जैसा ऑर्गन है उस तरीके से, या सर्कुलर ऐसे भी हो सकते हैं। सो अगर लॉन्गिट्यूडिनल है तब हम उसको लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स बोलेंगे। अगर राउंड है मतलब सर्कुलर होगा तो हम उसको सर्कुलर मसल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? सो दे मे बी उसके अरेंजमेंट के ऊपर हम उसको नाम देते हैं। इफ दे आर अरेंज्ड लेंथ वाइज देन वी कॉल इट एज लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। यानी इस तरीके से जो भी इंटेस्टाइन होगा उसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होंगे, राइट? और अराउंड द सर्कमफेरेंस, अगर सर्कमफेरेंस पर अरेंज होते हैं तब हम उसको सर्कुलर मसल्स बोलते हैं। जो स्फिंक्टर्स होते हैं ना, एनल स्फिंक्टर, या अंदर बॉडी में बहुत सारे इंटेस्टाइन में भी स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर यानी अभी ये जो ट्यूब है यहाँ पर अगर मैंने रबर बैंड लगा दिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ का पोर्शन बंद हो जाएगा, ठीक है ना? ऊपर ट्यूब रहेगी अपनी ऐसी जैसी है वैसी। तो यहाँ पर ये बंद करने के लिए सर्कुलर मसल्स होते हैं विच आर अगेन स्मूथ मसल। ये जो मसल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर्स। तो ये सर्कुलर होते हैं, दैट इज वाई सर्कमफेरेंस में अरेंज होते हैं, सर्कुलरली अरेंज होते हैं, दैट इज वाई वी कॉल इट एज सर्कुलर मसल्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्मूथ मसल्स। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. कार्डियक मसल लेना है, खत्म करना है।